आइएगा 3141 यस जी जी 3 सवाल हैं, एक कुश्ती महासंघ, एक विलियम बेंटिक और तीसरा जो है वो एनवायरनमेंट का ग्रीन मफलर भी है। टोटल 5 है मैडम। टोटल 5 है। यस मैडम। अच्छा ठीक है, चलिए एजी साहब को बताने दीजिए जी। As per your lordship's direction, the Secretary of Madhya Pradesh Public Service Commission is present in the court along with the desired record. जी So, but there are few important things, बताइए ना, which बताइए place it before your lordship. जी। But this is the writ petition. My lord, may kindly see page 3, my lord, the cause title. No person is impeded in personal capacity. ठीक है। Now, my lord, no allegation of malafide is levied in the whole writ petition. And my lord, may kindly see what is the foundation of filing these writ petitions. The petitioner is raising ground that had he been awarded the mark by adding the marks of the questions as stated above, he would have been declared as eligible. Now, my lord, if we go through with the clause of grounds, all presumptions are there. Now, this is the foundation which is there, my lord, seeking writ of mandamus by the Honorable Court. And with this backdrop, my lord, in page 12 of the writ petition, final reliefs are claimed. Yes. To issue a writ in the nature of mandamus by directing the respondent to amend the final model answer key contained in annexure P1 by showing correct answer. And the like reliefs are there. Now, my lord, almost all writ petitions, my lord, are similarly worded. I'll not go to the extent of saying that they are copy paste and they similarly worded identical. इससे क्या फर्क पड़ता है? तो ईज है, एक ने कंप्यूटर पे बनाया, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में आइडेंटिकल पीस निकाल दी है, क्या नुकसान है? अब साहब बस इसके इस बैकड्रॉप से कुछ आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हाँ रखिए ना। अब सर मैं इलेक्शन P3 पे आपका ध्यान आता है। P3 यस P3 पेज 21 यस ये है साहब एडवर्टाइजमेंट which was issued on 5th of September 2020। एक मिनट खुल जाइए जी 5th सितंबर ये है साहब एडवर्टाइजमेंट है सर 5/9/2023। हाँ एडवर्टाइजमेंट ऑन 5/9/2023 जी। This advertisement is relating to State's Civil Services Examination 2023 जी जी। So the pattern of the examination is 3-stage examination. Initially we conduct preliminary examination. So elementary, the less meritorious candidates, they are eliminated. So elimination round is there. The successful candidate go to the second round of examination, which we call mains, written examination. And then the successful candidate, they are invited for personal interview. So pattern of examination is 3 stages examination. And the initial 2 stages are elimination rounds. अच्छा, मेंस इज आल्सो एलिमिनेशन। Elimination अच्छा अच्छा based on the cutoff. Now, my lord, for the purposes of declaring, my lord, how we will conduct the examination, what is the scheme of the examination, my lord, we make it very clear in the advertisement itself. So, my lord, almost all the candidates are well aware that what is the pattern of the examination, what are the conditions, and what are the norms which are to be taken care of. Now, my lord, as per the norms which are made clear in the advertisement, my lord, may kindly permit me to take your lordship to page 26. 20? Page 26. जी. I invite your lordship's kind attention to clause 5. Yes. परीक्षा योजना. कहाँ लिखा है क्लॉज 5? साहब क्लॉज 5 26 पेज पे आपने 26 परीक्षा योजना। यस इसमें साहब परीक्षा की योजना जी। इसमें मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा क्लॉज 2 पर जी। अब मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रारंभिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट इतने पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 7 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। दिस इज इम्पोर्टेंट। इस अवधि के पश्चात या किसी माध्यम से प्राप्त किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। Is it your case that they were received after the due date? क्या आपका केस है क्या? The moment we publish
प्रोविजनल आंसर की 7 दिन में आपत्ति ठीक है, 7 days टाइम तो इन्होंने 7 दिन में नहीं की आपत्ति, ऐसा है क्या? बहुत सारों ने नहीं किया, इक्का दुक्का ने किया। तो जिन्होंने नहीं किया उनको बाहर कर देते हैं, बाकी जिन्होंने किया उनको बता दीजिए। जिन्होंने किया, मेरा एक निवेदन था। नहीं तो बता देना उसको, यही इसको कंक्लूड कर देते हैं इसको, एटलीस्ट सो दैट मेनी नंबर ऑफ पीपल विल बी सेट टू रेस्ट। जिन्होंने नहीं की 7 दिन में आपत्ति, उनके नंबर बता दीजिए। मैं सर एक और जी सर, एक इंपॉर्टेंट, फिर मैं आ जाऊँ, फिर आप सर नीचे फिर थोड़ा सा पढ़ूंगा। जी प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जी और ये ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधानिक उत्तर सूची में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है, तब प्रावधानिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा। प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर है, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। ऐसे प्रश्न, अब सर ये इसका 5वां रेलेवेंट में आता है जी, अब ये भी बहुत रेलेवेंट है जी विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात जी अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट स्तर पर प्रकाशित की जाएगी। जी अंतिम उत्तर कुंजी के, नाउ दिस इज रेलेवेंट जी जी एंड टाइम सप्लाइंग एम्फेसिस टू इट। जी अंतिम उत्तर कुंजी की प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति जी पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा। जी सो नाउ माय लॉर्ड, आई स्टॉप रेफरिंग टू दिस advertisement. No, my lord is well aware of this fact. My lord, law is settled on this point. जी My lord, when the conditions are clearly mentioned in the act, जी they knew it very well that the moment, my lord, they find some discrepancy in the provisional answer key, जी they have the remedy जी to file representation within a period of 7 days. जी Now, my lord, there are two categories. One category, first category is, my lord, of candidates who file the representation, जी and another category, my lord, who have not filed any representation. जी So, my lord, both these categories are taken care of by clause 5.5, in which, my lord, it is mentioned, विषय विशेषज्ञ समिति जो है उसका जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। कट ऑफ डेट के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। ठीक है। अब साहब ये जब कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन में जा रहे उन्होंने पढ़ा, इसमें एक आग्रह भी किया गया है कि आप कृपया करके इस एडवर्टीज की कंडिकाओं को सावधानी पूर्वक पढ़ें। तो एक अपील की गई है जी वो क्योंकि बंधनकारी हो। अब सर इसमें लॉ सेटल्ड कि सर अगर मान लीजिए ये कंडीशन है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट की जो फाइनल ओपिनियन जिसके बेस में फाइनल आंसर की पब्लिश की गई है उसको मान्य करना होगा इन कैंडिडेट्स को। इस कंडीशन को किसी ने चैलेंज जी चैलेंज कर भी नहीं सकते सर। सुप्रीम कोर्ट ने सर अशोक कुमार के केस में कहा कि प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल वुड ऑपरेट बिकॉज यू हैव नो प्रॉब्लम विद दिस कंडीशन। यू अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन द मोमेंट यू डिक्लेयर्ड अनसक्सेसफुल, नाउ यू टर्न बैक and started scrutiny of the advertisement and then raising litigation before the honorable court challenging some condition which they in fact cannot challenge at this stage. This is my respectful submission, my lord. Now few, my lord, there are few judgments. नहीं, पहले फैक्ट्स पे पूरा कर लें, पहले फैक्ट्स पे पूरा कर लें। जो पिछली बार कागज दिया गया था उसमें कमेटी कहाँ है, हमने इसीलिए इनको सेक्रेटरी साहब को बुलाया था। जी कमेटी कहाँ है पहले वो बता दें, कमेटी का कहाँ गठन हुआ। इट विल बी कॉन्फिडेंशियल, आई विल नॉट शो इट टू देम। ठीक है, हाँ कमेटी का गठन बताइए, कमेटी का गठन हुआ इस नियम के अनुसार और उस कमेटी ने क्या विचार किया। ये जो पिछली बार दिया था ये इससे अलग है क्या? आपकी क्वेरी आंसर करने के लिए ये आज का रिकॉर्ड है। नहीं उस दिन जो दिया था आपने उसको हमने वापस सील करा दिया था। सर क्या हो रहा है सर, एक मैं निवेदन कर रहा हूँ जी, जैसे कई सारे आंसर्स में आपत्ति आती जी, तो सर क्या होता है मान लीजिए कि 20 क्वेश्चंस में आपत्ति आई जी, सर कुछ कोर्ट में आ गए पिटीशन पे कुछ नहीं आया जी, मैं सर आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूँ जी, जिससे कुछ डाउट क्रिएट हुआ था लास्ट डेट में। सर मान लीजिए 20 क्वेश्चंस में आपत्ति, तो उससे रिलेटेड जो ऑथेंटिक टेक्स्ट होता है जो भी होता है वो सब लगाकर सर इसका कंपाइलेशन हो गया मान लीजिए। उसमें से जब कोर्ट ने मांगा कोई क्वेश्चन जो बीच का रहा उसका रिकॉर्ड ना, तो उसका रेलेवेंट का इन्हें फोटोकॉपी करके नहीं आप रेलेवेंट रिकॉर्ड तो आज भी दे सकते हैं। मेरा सवाल समझिए आप। सर उसमें साइन नहीं था। नहीं वो नहीं मैं तो आज ये पूछ रहा हूँ आपसे, उस दिन भी पूछा था जिस एक कागज में साइन था। आई एम नॉट सपोज टू डिस्क्लोज द नेम, आपके ऑफिसर ने भी आके बोला था देयर इज अ जजमेंट एंड आई हैव कोटेड इट। कमेटी का गठन इसमें लिखा है विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा, तो वो विशेषज्ञ समिति का गठन का क्या प्रावधान है और उस कमेटी ने क्या कंसीडर किया उतना बता दीजिए। उसके बाद आपका अशोक कुमार का जजमेंट लागू होगा। उतना ही पूछने के लिए बुलाया था इनको सेक्रेटरी साहब को। बारे में मैंने आपको निवेदन किया, मैंने पूरा एग्जामिनेशन की योजना नहीं योजना में ही तो पढ़ रहा हूँ मैं, आपके एडवर्टाइजमेंट में पढ़ रहा हूँ पेज 27 पर। वही मैं बोल रहा हूँ सर, जो आप रूल्स बोल रहे हैं सर आर्टिकल 309 पे है रिक्रूटमेंट को रेगुलेट करने के लिए पीएससी चाहे वो यूनियन की हो चाहे स्टेट की, दे कैन फॉर्मुलेट देयर ओन नॉर्म्स। तो वेयर आर दोस नॉर्म्स?
norms are there in the advertisement. वही तो मैं पूछ रहा हूँ, why you are trying to digress your this clause on page 27 annexure P3, please read it again. Read clause 5. हाँ, ठीक है ना। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, समिति कहाँ, समिति का गठन कहाँ है, क्योंकि उसमें एक सिंगल आदमी का था जो आपने पिछली बार दिखाया था। दिखाइए, आप खोलिए ना। सर क्या हो रहा है, कुछ एक इम्पोर्टेंट, सर मैं इसलिए यहाँ पर ये तो रिकॉर्ड है सर, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्किप द क्वेरी ऑफ द कोर्ट, जी बट सर व्हाट माय एंजाइटी इज जी योर लॉर्डशिप में काइंडली, आई होप माय लॉर्ड योर लॉर्डशिप वुड सर्टेनली अप्रिशिएट जी the anxiety of public service commission. जी So there are more than 2,31,000 forms जी which were submitted by the candidate, जी out of which more than 1,71,000 candidates appeared in the preliminary exam. ठीक है, that No, as many as 6,000 candidates they are waiting जी for their opportunity to appear in the final examination. जी Hardly 100 to 150 petitioners are there, madam, जी before your lordship, having no basis and to file a petition, madam. They have, I mean, madam, they are taking help of their own imagination. नहीं, वो तो court will decide and that will be subject to the right of your right to file appeal. But let us understand that where is the formation of this committee? नहीं, definitely. पहले ये 5 में लिखा विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा, तो ये समिति कितने लोगों की है ये थोड़ा सा बता दे. I will not touch the names. Neither I will read the names nor I will ask him to read the names. I understand I just want to know how many persons committee was constituted. तो वो यूनिट वाइज होती है. कहाँ है उसका नियम, कहाँ है कमेटी बनाने के लिए? वेयर इज द सर्कुलर विच परमिट्स यू टू फॉर्मुलेट अ स्पेशलिस्ट कमेटी, विशेषज्ञ कमेटी? कोई आपने सामने बताया ना आर्टिकल 309 में यू कैन रेगुलेट योर ओन प्रोसीजर. तो प्रोसीजर रेगुलेट करने के लिए क्या निर्देश हैं आपके? कहाँ है वो नॉर्म्स कहाँ है? नॉर्म्स तो बता दीजिए. अरे भैया, आपने अभी आपके वकील साहब ने बहस करी, इज अ सीनियर काउंसिल. आई हैव नोटेड डाउन दैट आर्ग्यूमेंट that under Article 309, PSC or UPSC is entitled to regulate its own procedure. Now, you must have formulated certain norms to regulate the procedure of constitution of an expert committee. What are the norms for constitution of an expert committee? हिंदी में बोलूं आपको, ये समझ में आ गया आपको? जी. मेरा एक निवेदन सर, आपकी बात समझ गया. आप ये समिति के गठन से संबंधित और कोई आदेश या सर्कुलर इसके बारे में स्पेसिफिक क्वेरी कर. जी एक जी मैंने अभी विषय विशेषज्ञ समिति. एक और चीज साहब अप्रिशिएट किए गए, पीएससी जो है, चाहे वो पेपर सेटर्स हो, चाहे रिव्यूअर्स हो, चाहे सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ये उनके एम्प्लॉइज नहीं होते. हम लोग सर एक डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स जो होते हैं, वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से सर, हम वी सर रिक्वेस्ट देम एंड टू ऑफर देयर सर्विसेज मानो द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. हाँ ठीक है, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है. वी आर थैंकफुल टू सच. नहीं, भाई हम भी हाई कोर्ट में एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, हमें मालूम है कि उनकी ना तो हम गरिमा को कोई टच करना चाहते हैं, ना हम उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहते हैं. हम तो प्रक्रिया पूछ रहे हैं जिस प्रक्रिया के तहत आपने एक्सपर्ट कमेटी बनाई. अरे भाई, सर्कमवेंटिंग द क्वेश्चन विल नॉट हेल्प the PSC. So where is the norm? You argued. Had it been the case that I wanted to skip your lordship's question, I would really, my lord, make a very humble submission before your lordship that first it is to be tested whether these patients are maintainable before your. I asked you in the first place. I asked you in the first place कि जिन लोगों ने debate which we are having. No, we are not having an academic debate. You are required to point out that which one of the petitioners had not filed their objections within the prescribed time. So I said in the first place we will throw them out. I insist your lordship, but this is not my duty. My lord, if the petitioners are requested to demonstrate before your lordship. So let them start. This is the first query which honorable court generally makes to the petitioner, that you make out a prima facie. So let them argue first. You started. No, you I started because your lordship has directed personal appearance of the officer. So that does not mean that the officer who has been asked to remain present will hijack the show and not curtail the right of the petitioners to argue. He can wait for his turn. Let the petitioners argue. I'll ask them to show their locus. Once they fail to show their locus, then your lordship may kindly hear them. Yes. So, I tried to assist this honorable court because the final mains examinations are scheduled for 11th of I know that. For lot of work which is to be completed by the secretary. ठीक है. Their distribution of examination material and to ensure. वो कंट्रोलर ऑफ एग्जाम करता है कि सेक्रेटरी करता है? सेक्रेटरी की भी परमिशन लगेगी ना साहब. अच्छा. तो इसलिए मेरा निवेदन था, मैंने सोचा आपकी बातों को मैं ठीक है. बहुत सारी चीजें जो साफ साफ रखी नहीं गई को. हाँ ठीक है, नहीं आपको राइट है. यू हैव अ राइट टू ऑडियंस. आपको सुना, लेकिन जो ये इशू है आपने जो रेस किया है, लोकस पहले इनका देख लें कि लोकस किस किस का है. चलिए एक एक करके चलिए. My lord, I will rely on two petitions, Your Lordship. जी.
मतलब ये जो पिटीशन है 3141 जिससे एजी साहब ने बहस चालू करी है, उसमें कौन पिटीशनर के वकील है, वहां से शुरू करें। मतलब आई एम द काउंसिल फॉर द पिटिशनर। हाँ, वहां से उसी को बेस बनाइए, उसी से शुरू करिए। मतलब देयर इज वन मोर पिटिशन आई विल रिलाई लॉर्डशिप, जी if my lord may permit. जी My lord. My lord, in this WE 3141 lordship, three questions were disputed, your lordship. जी। My lord, first, नहीं, पहले यहाँ से बताइए कि क्या आपने 7 दिवस के भीतर, जैसा एडवर्टीजमेंट में लिखा है, आपत्ति प्रस्तुत की थी कि नहीं की थी? my lord, I will reply this very, your lordship. नहीं, you directly reply this. My lord, And all the counsel for the petitioner come out first with this issue that किसने 7 दिवस के अंदर या जो भी प्रेस्क्राइब टाइम है एडवर्टीजमेंट में, उसमें आपत्ति प्रस्तुत की थी मॉडल आंसर के लिए। ठीक है, उनको सुनेंगे, बाकी को नहीं सुनेंगे। चलिए, तो वो डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जिससे आपने आपत्ति प्रस्तुत की। रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ, पहले डेट्स दीजिए। व्हेन वाज द रिजल्ट फॉर प्रीलिम एग्जाम वाज डिक्लेयर्ड? my lord, prelims was conducted on 17th of December, your lordship. 17th December prelims was conducted. Mr. Anshul Tiwari, 17th December prelims were conducted. रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ? My lord, provisional answer key was issued, your lordship, जी, on 20th of December 2023. 20th December 23, That is Annexure P2, your lordship. P2। जी, And final answer key was published on 18th of January 2024. नहीं वो नहीं, इसके 7 दिन 20 तारीख को किया गया। My lord. आपने 27 तारीख तक आपत्ति कर दी क्या? My lord, इसमें my lord, दो इशू हैं, lordship. There are two questions, your lordship, related for not carrying. Anshul Tiwari, you will not succeed like this. Sir. पहले मुझे ये बताइए, 20 तारीख को प्रोविजनल आंसर की लोड होने के बाद Sir. आपने अपनी आपत्ति किस मतलब- तिथि को प्रस्तुत करी? गिव मी दैट डेट फर्स्ट, देन आई विल कम टू द क्वेश्चन। मतलब इसी क्वेरी का आंसर दूंगा मैं। हाँ। मतलब प्रोविजनल आंसर की मैं आंसर सही दिया गया था पीएससी के द्वारा। ऑप्शन सी दिया था, ग्रीन मफलर का और एकेएफआई का। एक सेकंड रुकिएगा, देखते हैं। P2 इज द प्रोविजनल आंसर। प्रोविजनल आंसर की मतलब हाँ, मतलब ग्रीन मफलर का क्वेश्चन है 28 सेट डी का। एक बार हाँ, इधर आइए। ये क्या आता है? ये P2 में ये एरर क्यों आ रहा है? जी, पीडीएफ अपलोड तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो कुछ क्या करेंगे हम? क्या केस की हियरिंग मुलतवी कर दें? फिजिकल फाइल दीजिएगा 106.1 की, इसमें लिखिएगा यहाँ पर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स व्हेन पिटिशनर काउंसिल रिफर्ड टू एनेक्चर P2 in WP 3141, an error occurred while loading the document. Try reloading the page is the caption which is shown on the screen. Full stop. श्री इकबाल, आप किस पद पर हैं? Data entry operator submits that error is because of error in loading the page. Full stop. This is a serious issue. E-hearing is not supported due to the fault of the IT section of the High Court. Let this fact be notified to the Registrar General, who may take action and bring action taken report within 7 days. And place action taken report before this court within 7 days. P2 पढ़िएगा। हाँ, P2 my lord, kindly refer question 28, your lordship, set D का set page number 20 में, my lord, that is the provisional answer key, your lordship. set D का question number? 28, 28, yes। my lord, वो मैंने क्वेश्चन भी लगाया, पेज नंबर 33 पे है, your lordship. एक सेकंड, पेज नंबर 33 पे? My lord. नहीं, 33 पे तो ठीक है, क्वेश्चन आपने लगाया होगा। My lord, उसका हमने सही आंसर लगाया था ऑप्शन 28 का, 28 सेट डी का। my lord. किस नंबर पे बताइए, क्योंकि ये तो उन्होंने तो हमें, हमारे लिए एक काम ये भी हो गया कि हम खोजें बैठ के। मतलब पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन है वो। अरे भाई, क्वेश्चन से मतलब नहीं है। 28 इसका ऑप्शन सी दिया है। my lord, हमने सी ऑप्शन टिक किया था। हाँ, और सी ऑप्शन दिया है। पेज 33, my lord, पेज 33, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन ऑफ नॉइज। ठीक है, my lord. उसके बाद इन्होंने किसको करेक्ट कर दिया? मतलब उसके बाद उसमें पीएससी इन द फाइनल आंसर की हैज एडेड अनदर ऑप्शन एज अ नॉइज एयर पोल्यूशन आल्सो। एक सेकंड, 18 जनवरी को फाइनल रिपोर्ट फाइनल आया ना? my lord, 18 जनवरी, पेज नंबर 18 पे फाइनल आंसर की क्वेश्चन 28 ऑफ सेट डी provisional list shows option C, noise, as the correct answer. Later on 18 January,
नॉइस के साथ क्या जोड़ दिया? एयर पोल्यूशन। एयर। बी और सी को इन्हें करेक्ट कर दिया लॉर्डशिप। एयर ऑप्शन बी वाज एडेड। उससे आपको क्या प्रेजुडिस हुई? मतलब एज पर दी सोर्सेज लॉर्डशिप, मतलब सोर्सेस पे बाद में आएंगे। मतलब ठीक है, चलिएगा अभी Uh, दूसरा बताइए। मतलब तो ये second- ये इसकी तो आप आपत्ति कर नहीं सकते थे क्योंकि ये सही आंसर यस था। मतलब। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताइए। मतलब सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, हेडक्वार्टर्स ऑफ एकेएफआई एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ 63 इंडिया। जी उसका पेज नंबर 34 में हमने क्वेश्चन को भी वो किया है। एक सेकंड, सेट डी में ही देख रहे हैं ना हम? मतलब सेट डी सेट डी इसमें लॉर्डशिप 63 मतलब प्रोविजनल आंसर की में इसमें जयपुर ने पहले टिक किया था। जयपुर वाज द करेक्ट आंसर व्हिच वाज गिवन बाय द एमपीपीएससी। जी लेटर ऑन दे चेंज इट टू दिल्ली। यस लॉर्डशिप। जी एक सेकंड, क्वेश्चन 63 ऑफ सेट डी, ये रीजनल आंसर एससी जयपुर लेटर ऑन चेंज टू दिल्ली। जी इसका भी आप आपत्ति नहीं उठा सकते, देखिए तो सही आंसर था। चलिए, मतलब एंड मतलब फॉर थर्ड क्वेश्चन पिटिशनर हैज नॉट रेज्ड एनी ऑब्जेक्शन लॉर्डशिप ठीक है विद इन टाइम मतलब। जी, ठीक है, छोड़िए उसको। कौन से आप दोनों ने? 106 एंड 106 सिंगल पिटिशनर मतलब। नहीं एक और दो दोनों ने नहीं लिया ना ऑब्जेक्शन। 6 आपकी दो पिटीशन है ना, 106 एंड 106.1। मतलब 106.1 में एक फैक्ट है थोड़ा, उसमें पिटिशन नंबर 1 ने आपत्ति ली है मतलब। आई विल शो मतलब इन रिगार्ड टू क्वेश्चन नंबर दिस 7 आल्सो मतलब इन रिगार्ड टू 3 क्वेश्चंस है लॉर्डशिप, फॉर डिलीशन ऑफ 3 क्वेश्चंस है लॉर्डशिप। मतलब काइंडली रेफर मतलब WP 5075। 5075 जी। इसमें तो आप अच्छा, हाँ क्या है इसमें? मतलब हियर मतलब पिटिशनर हैज डिस्प्यूटेड 3 क्वेश्चन। तो इसमें तो दो ही क्वेश्चंस डिस्प्यूट किए ना, 106 और 106.1 में तो दो ही क्वेश्चंस डिस्प्यूटेड हैं। मतलब उनमें 2 हैं। अच्छा एक बार बताइए कट ऑफ कितना था? इन दो, पहले इन दो पिटीशंस पर डील कर लें, एक एक करके चलेंगे। मतलब कितना कट ऑफ था? मतलब 106 में जी कट ऑफ अलग अलग थोड़ा होगा भाई। मतलब अलग अलग कैटेगरीज के थे मतलब। हाँ अलग अलग कैटेगरी के लिए कट ऑफ बता दीजिए। मतलब आई हैव annexed that to your lordship. Annex P5 is the cut off list your lordship. पेज नंबर Page number 33. इस पिटीशन में My lord is referring to अभी आपने जो पिटीशन बताई थी 3141. 3141 3141 my lord cut off list. अनारक्षित ओपन में 148 158 पेज 31 पर, मतलब पेज 31 पर 158 और ओबीसी के लिए 156। मतलब आप लोगों के कितने नंबर आए? मतलब in this petition your lordship the petitioner has scored 154 marks your lordship. किसमें? In WP 3141. 3141 में किस कैटेगरी के हैं ये? मतलब he belongs to OBC category. ओबीसी 154 मतलब 154 marks. जी ठीक है। और 5714 में? In 5714 your lordship the petitioner number 1 has scored 156 marks. He belongs to unreserved category and the cutoff was 158 your lordship. जी ठीक है जी। और पिटीशन नंबर 2? Petition number 2 scored 156 marks and the cutoff was 158 your lordship. जी ठीक है जी। और पिटीशन नंबर 2? Petition number 2 scored 156 marks your lordship. He belongs to EWS category. उसका cutoff 158 है your lordship. जी ठीक है ठीक। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.